Hello everyone, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law It channel. And in this video, we are going to discuss the Indian Evidence Act previous year question paper of All India Bar Exam. As you all know, कि All India Bar Exam की डेट को शिफ्ट कर दिया गया है, इसे पोस्टपोन कर दिया गया है 1 मंथ के लिए. बट इट डजंट मीन कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे. आपको डायरेक्ट पढ़ते रहना है, साथ ही साथ MCQs लगाते रहने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Our first question is, under which section of the Evidence Act admission is defined? Admission कहाँ पर define किया गया है in the Indian Evidence Act? Is it section 17, section 18, section 19 or is it section 20? This is the 19, option 19, okay. तो पूछा जा रहा है कि admission कहाँ define करा गया है? And the correct answer to this question will be option 1, that is section 17 of the Indian Evidence Act defines admission. Whereas if we talk about the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, so admission has been defined under section 15 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam. ठीक है, हमें साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पढ़ने हैं बिकॉज वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट बन चुका है इस साल से. The next question is, Indian Evidence Act came into force on which date? यहाँ पर इन्फोर्समेंट डेट पूछी जा रही है. ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द डेट ऑफ अडॉप्शन एंड द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट. डेट ऑफ अडॉप्शन इज द डेट ऑन विच प्रेसिडेंट साइन करते हैं, वेयरएज जो इन्फोर्समेंट डेट होती है उस दिन उस एक्ट को लागू कर दिया जाता है. तो पूछा जा रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट को कब लागू करा गया था. इज इट 7th of October 1860, 1st of March 1974, 14th of March 1872 और इज इट 1st of September 1872? तो जहां हम बात कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट की, तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 1st of September 1872. दैट मींस फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. और अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो इसकी इन्फोर्समेंट डेट भी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज 1st of July 2024. और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ ही साथ जो अदर क्रिमिनल लॉज है, दैट मीन्स भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन दोनों लॉज को भी उसी दिन लागू करा गया था, दैट इज ऑन 1st of July 2024. और 1st of September 1872 को ही हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी इन्फोर्समेंट डेट देखी है. The next question is, admission can be broadly categorized into option 1 judicial, option 2 extrajudicial, option 3 either judicial or extrajudicial, or is it option 4 that is both judicial and extrajudicial? And the correct answer to this question is option 4, that is admission can be broadly categorized into judicial as well as extrajudicial. Because judicial admission वो होते हैं जो हम जज या मजिस्ट्रेट के सामने करते हैं, और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन हो गया वो हम किसी पुलिस ऑफिसर या किसी अदर पर्सन, किसी अपने फ्रेंड के सामने, डॉक्टर के सामने, किसी के भी सामने अगर हम कुछ एडमिट कर रहे हैं तो दैट विल बी एन एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन. The next question is, it is talking about section 66 of the Evidence Act, or section 66 of the Evidence Act lays down option 1, a notice must be given before secondary evidence can be received under section 65A of the Indian Evidence Act. Option 2, notice to produce or document must be in writing. Option 3, order 11 rule 15 of CPC prescribes the kind of notice to produce a document, or is it option 4, that is all of the above? We are talking about section 66 of the Indian Evidence Act. And the correct answer to this question will be option 4, that is all of the above. It means section 66 में हम notice की बात करते हैं which must be given before secondary evidence can be received under section 65A, और हम इसमें बात करते हैं notice to produce a document must be in writing, और ये भी बात कही गई है कि order 11 rule 15 के according it prescribes the kind of notice to produce a document. I hope आपको ये रोमन नंबर्स पढ़ने में आते हैं. दैट मीन्स अगर यहाँ पे x और उसके बाद 1 लिखा है, x दैट मीन्स 10 हो जाता है, और उसके बाद I दैट मीन्स 1, तो 10 + 1 11, तो दिस इज ऑर्डर 11. ठीक है,
ये बहुत ही माइनर कंफ्यूजन होती है जो एग्जाम के दौरान हो जाती है और आपसे आंसर गलत हो जाता है. So always keep in mind all these numbers. The next question is maxim res ipsa loquitur means. इस maxim का क्या मतलब है? Is it option 1 that means things speaks for itself? Option 2 where there is a right there is a remedy? Is it option 3 where there is a remedy there is a right? Or is it option 4 where there is no fault there is no remedy? The maxim res ipsa loquitur का meaning पूछा जा रहा है. And the correct answer to this question will be option 1 that means the thing speaks for itself. Our next question is when the accused states I will produce the share which I received in such and such robbery. Which of the following are not admissible with regard to section 25 of the Indian Evidence Act? Accused ने ये बात कही है that I will produce the share which I received in such and such robbery. अब as per section 25 of the Indian Evidence Act इनमें से कौन सी बातें as an admissible हम नहीं कर सकते हैं, कौन सी बात हम admit नहीं कर सकते हैं? क्या ये पहला statement that is an admission that there was a robbery? Second statement is an admission that the accused took part in it. Statement 3, an admission that he got part of the property. Statement 4, a statement as to where the property is. इनमें से कौन सी बात हम admit नहीं कर सकते हैं as per section 25 of the Evidence Act? And the correct answer to this question is option 1, that is 1, 2 and 3 किसी भी statement को हम admissible नहीं कर सकते हैं. पहली बात an admission that there was robbery. कोई भी person ये बात admit नहीं कर सकता as per section 25 of the Evidence Act क्योंकि ये confession हो रहा है. An admission that the accused took part in it. अब हम अगर accused हैं तो हम ये बात कोर्ट में हम ये बात पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं कह सकते हैं कि yes I took part in the robbery because ये एक कमीशन का पार्ट हो जा रहा है, कन्फेशन का पार्ट हो जा रहा है. ठीक है. और किसी भी पुलिस ऑफिसर या किसी भी पुलिस ऑफिसर या पुलिस स्टेशन में जाकर हम कोई भी बात को एडमिट नहीं कर सकते हैं किसी ऐसे स्टेटमेंट को जो कि कन्फेशन का पार्ट बन जाए. अगर हमें कन्फेशन करना है तो हम मजिस्ट्रेट के सामने करेंगे. And the third statement that is admission that he got part of the property. ये भी बात अगर हम जाकर कहते हैं तो this will not be an admission as per section 25. ठीक है. The next question is the question is whether A owes B rupees 10,000. So which of the following statement are relevant under the Evidence Act? Is it option 1 that is the facts that A asked C to lend him money? Option 2, D said to C in A's presence and hearing, I advise you not to trust A, for he owes B rupees 10,000. Option 3, A went away without making any answer. Or is it option 4, all of the above? यहाँ पर पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा अंडर द एविडेंस एक्ट. So the correct answer to this question is option 4, that is all of the above. ये सारी बातें as an admission, ये सारी बातें हम as relevant मान सकते हैं under the Evidence Act. The next question is so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered by the police may be proved. So much of such information, ऐसी इंफॉर्मेशन या तो वो कन्फेशन है या तो नहीं है, हमें उस चीज से मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो किसी भी फैक्ट की डिस्कवरी कर रही है और वो बात हम पुलिस ऑफिसर को जाकर बता रहे हैं तो वो चीजें कोर्ट में प्रूफ करी जा सकती है. ये बातें कौन से सेक्शन में करी गई है? इज इट सेक्शन 24 ऑफ द एविडेंस एक्ट, सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट, सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट, और इज इट सेक्शन 28 ऑफ द एविडेंस एक्ट? यहाँ पर बात हो रही है डिस्कवरी की. ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 3,
दैट इज सेक्शन 27 में ये बात कही गई है कि अगर हम एक पुलिस ऑफिसर को कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वेदर वो कन्फेशन है या नहीं है उस चीज से हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो कि एक डिस्कवरी का पार्ट फॉर्म कर रही है, तो दैट स्टेटमेंट विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट. ऑलराइट. Our next question is, this is a bit long question, तो आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा. See, when the court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science, art or as to identity of the handwriting या फिर finger impression, तो the opinion upon that point of person specially skilled in such foreign law, science, art or in question as to identity of the handwriting or the finger impressions are relevant fact. This is under which section of the Evidence Act? ये जो पूरी बातें लिखी हुई है इस पैराग्राफ में, ये एक सेक्शन से उठाया गया. ठीक है. अब पूछा जा रहा है ये कौन से सेक्शन में ये बातें करी गई है. Is it section 42, section 45, section 50, or is it section 55 of the Indian Evidence Act? And the correct answer to this question will be option number 2. That is section 45 talks about the point when the court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art or as to identity of the handwriting or the finger impressions. So the opinion upon that point of the person specially skilled in such foreign law, science या फिर art और कोई भी question as to identity of the handwriting या फिर finger impression, तो वो सारी बातें relevant हो जाएगी as per section 45 of the Evidence Act. Our next question is res geste, that is the relevancy of facts forming part of the same transaction is dealt under which section of the Indian Evidence Act? आई होप आपको डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे के बारे में पता होगा, और इसे हम ये भी कहते हैं कि ये एक ऐसे रेलेवेंट फैक्ट होते हैं विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. तो यहाँ पर सेक्शन पूछा जा रहा है कि किस सेक्शन में रेस जेस्टे का डॉक्ट्राइन दिया हुआ है. इज इट सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट, सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इज इट सेक्शन 18 ऑफ द एविडेंस एक्ट, और इज इट सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? And the correct answer to this question will be option 1, that is section 6 of the Indian Evidence Act. और अगर हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, तो as per section 4 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम res geste has been given. Our next question is, see, यहाँ पर A जो है, he is accused of waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, and goals are broken open. Goals, that means jails. Okay. So the occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them. Has been given under which section of the Indian Evidence Act? तो ये जो पैराग्राफ में जो बातें लिखी गई है, ये सीधे सीधे एक इलस्ट्रेशन से उठाई गई है. अगर आपने उस इलस्ट्रेशन को पढ़ा होगा, आप इजीली आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. तो द ऑप्शंस आर सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, और इज इट सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? And the correct answer to this question is option 2, that is section 6 res geste. अभी अभी हमने पढ़ा कि forming the part of same transaction, जो भी statements रहेंगे तो उसे हम section 6 में डालेंगे. ठीक है. The next question is section 110 of the Indian Evidence Act deals with option 1 documentary evidence, option 2 exclusion of oral evidence, is it option 3 burden of proof as to ownership, or is it option 4 that is proof of guilt? And the correct answer to this question will be option 3, that is burden of proof as to ownership. The next question is
Section 113A, okay, of the Evidence Act deals with option 1, presumption as to abetment of murder. Option 2, presumption as to rape and abetment of suicide by a married woman. Option 3, presumption as to abetment of kidnap of a girl. Or is it option 4, that is presumption as to abetment of suicide by a married woman? सेक्शन 113A के बारे में बात हो रही है, ये कैपिटल ए है, ऑलराइट, और इसे एक अमेंडमेंट से ऐड करा गया था। आप मुझे बताइए ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड करा गया था, और इसमें हम प्रिजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो कौन से प्रिजम्पशन की बात कर रहे हैं? इज इट मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम? और जहां तक क्वेश्चन नंबर 13 के सही आंसर की बात है, तो वो मैं बता दूं, दैट इज ऑप्शन 4, presumption as to abetment of suicide by a married woman. सेक्शन 113A के बारे में ये बात कहता है। The next question is, how many kinds of presumptions are there as classified by the Supreme Court? Supreme Court ने कितने तरह के presumptions की बात करी गई है? Is it option 1, permissive presumptions or presumptions of fact? Option 2, compelling presumption or presumption of law, that is rebuttable presumption. Option 3, irrebuttable presumptions of law or conclusive presumptions. Or is it option 4, all of the above? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने तरह के प्रिजम्पशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है, प्रिजम्पशन को किस तरह से क्लासिफाई करा गया है। So the correct answer to this question will be option 4, that is all of the above. हम rebuttable presumption के बारे में भी देखते हैं, irrebuttable presumption जिसमें हमारा shall presume आ जाएगा, rebuttable presumption जो होता है may presume होता है, कुछ में shall presume को भी रिबट करा जा सकता है अगर हमारे पास कोई ठोस सबूत हो, और एक होता है presumption of fact के बारे में, presumption of fact तो हमेशा may presume ही होता है, ठीक है। some of the facts को हम shall presume भी कर सकते हैं, all right, so all of the above is the correct answer. The next question is, under the head subsequent conduct, which of the following type of conduct would be material? Subsequent conduct की यहाँ पर बात हो रही है, तो किस तरह के conduct को हम material मानेंगे? Is it option 1, change of life? Option 2, evasion of justice? Is it option 3, fear trembling? Or is it option 4, all of them? Question number 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सबसीक्वेंट कंडक्ट की हम जहां पर बात करेंगे वहां हम चेंज ऑफ लाइफ भी समझते हैं, इवेजन ऑफ जस्टिस भी हो सकता है, फियर एंड ट्रेम्बलिंग भी हो सकता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर्ट? इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा कोर्ट नहीं है? इज इट ऑप्शन 1, persons legally authorized to take evidence, judges, magistrates और arbitrators? पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कोर्ट नहीं है, and the correct answer to this question will be option 4, that means arbitrators are not the court. जजेस तो होते हैं, मैजिस्ट्रेट्स भी होते हैं, ऐसे पर्सन जिनको लीगली ऑथराइज करा गया है एविडेंस लेने के लिए, वो सारे लोग भी कोर्ट में आते हैं, लेकिन एक पर्सन नहीं आता है, दैट इज आर्बिट्रेटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच वन इज दैट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ऑप्शन 1 इज, a confession by one co-accused implicating other co-accused would be proved. A confession to a police officer cannot be proved. A confession by a person in the custody of a police officer to any person in the presence of magistrate can be proved. Or is it option 4, if the confession of a person leads to recovery of a thing, it can be proved. अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पर नॉट ट्रू की बात हो रही है, ऑलराइट, और इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज अ कन्फेशन by one co-accused implicating other co-accused would be proved. This is not true. Second option, that is confession to a police officer cannot be proved, ये बात तो सही है,
हम पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन नहीं दे सकते, कुछ देर पहले ही मैंने अभी बताया। और इसके बाद वाला ऑप्शन, दैट इज द कन्फेशन बाय अ पर्सन इन कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू एनी पर्सन इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट कैन बी प्रूव्ड। ये भी बात हमने कही कि आप मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी बात कन्फेस कर सकते हैं, ठीक है, इवन इफ वहां पर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट है तो भी। और अगर कोई भी कन्फेशन हो रहा है किसी भी पर्सन का जो कि लीड कर रहा है टू द डिस्कवरी ऑफ अ थिंग, ठीक है, तो उसे भी प्रूव करा जा सकता है। ये भी हमने सेक्शन 27 में देखा है। Our next question is, the Kashmira Singh versus State of MP is a leading case on। अब केस लॉ के तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, या तो आपको आते होंगे या तो आपको नहीं आते होंगे, आप यहाँ पर तुक्का नहीं लगा सकते हैं, और इसके आंसर्स आपको डायरेक्ट में भी नहीं मिलते हैं। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के बारे में पूछा जा रहा है। ऑल राइट, द ऑप्शंस आर डाइंग डिक्लेरेशन, एडमिशन, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, और इज इट कन्फेशन ऑफ अ को-एक्यूज्ड। पूछा जा रहा है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के बारे में, एंड इट इज द लीडिंग केस ऑन ऑप्शन 4, दैट इज कन्फेशन ऑफ अ को-एक्यूज्ड। The next question is, if it is proved that a man has not been heard of for how much year by those who would naturally have heard about him if he were alive, so the presumption under section 108 of the Evidence Act is that he is dead। यहाँ पर डेथ की प्रिजम्पशन ली जा रही है, ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। और प्रिजम्पशन ऑफ डेथ हम कब ले सकते हैं, जब कोई भी पर्सन जो नेचुरली किसी पर्सन के बारे में जानता है, उसे पता है, उससे मिलता है, बात करता है, उसे देखता है, या किसी भी तरह से उसकी जानकारी रखता है, और उस पर्सन ने उसे आखिर कितने सालों से नहीं जाना है, नहीं सुना है उसके बारे में, तो हम मान लेंगे कि दैट पर्सन इज डेड। दी ऑप्शंस आर 5 years, 7 years, 15 years, or 20 years. So the correct answer to this question is option 2, that is 7 years। 108 में हम presumption of death की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 years तक अगर किसी भी पर्सन को हम नेचुरली जिसे सुनते हैं उसके बारे में हमें कोई खबर, कोई खोज खबर, कोई अता पता हमारे पास नहीं है, then we will presume that that person is dead, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ डम विटनेस गिवन हिज एविडेंस इन राइटिंग इन द ओपन कोर्ट, सच एविडेंस वुड बी ट्रीटेड एज। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और उसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, तो यहाँ पर बोला जा रहा है डम विटनेस के बारे में, गिवन हिज एविडेंस इन राइटिंग इन द ओपन कोर्ट। एक डम विटनेस ने ओपन कोर्ट में रिटन फॉर्म में अपना विटनेस दे दिया, अपना एविडेंस दे दिया, तो सच एविडेंस वुड बी ट्रीटेड एज। उस एविडेंस को हम कैसा एविडेंस मानेंगे? क्या हम उसे ओरल एविडेंस मान सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मान सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस मान सकते हैं, या फिर हम उसे प्राइमरी एविडेंस मान सकते हैं? डम विटनेस ने रिटन फॉर्मेट में ओपन कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया है, एविडेंस दी है, तो उसे हम ओरल एविडेंस का दर्जा देते हैं। ऑल राइट, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। और हमारा जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब मैं पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूं, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 74। आप 74 में जाके उसकी डेफिनेशन पढ़िए, उसके बाद आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होगा। Is it option 1 bank books, option 2 post-mortem report, option 3 judgment of the High Court, or is it option 4 registered sale deed? और इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। साथ ही साथ अगर इंडियन एविडेंस एक्ट को आपको पढ़ने में या समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन एविडेंस एक्ट देख सकते हैं। वहां पर मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ाया है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं पाए गए हैं, कंसेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं तो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट भी क्लियर होते जा रहा है। हाँ, सेक्शन नंबर अलग है, सेक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, और उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं एक इंडेक्स रिविजन बेस्ड
आपके लिए वीडियो लाने वाली हूँ। उससे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का सारा सेक्शन रिवाइज हो जाने वाला है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।